in unit systems. In first video of chapter number 2 measurement and unit systems, we had already discussed about basic information of units and measurements. First of all, I would like to explain again what do you mean by different types of physical quantities. So friends, you all very well know that for the detailed study of any kind of events, either man-made or natural, whatever is required is said to be physical quantities. And if you want to go for detailed study of any physical quantities, you require necessary units. And so you can say that the standard measurement of any physical quantity is said to be their units. In previous video, we had already discussed about different kinds of unit systems, in which we can say that we had discussed MKS unit system, CGS unit system, MKSA unit system, FPS unit system, and the unit system which is accepted universally, which is said to be System International, means SI unit system. Here the basic name of chapter is measurement and unit systems. Measurement and unit systems. तो बेटा यहाँ पर हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, हमने एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया, और ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. Why they are said to be fundamental physical quantities? Because these physical quantities cannot be explained with help of any other physical quantities, so they are said to be fundamental physical quantities. फिर से मेरी बात समझो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, पूरे साइंस में अवेलेबल है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, और उसमें से सबसे पहला है दैट इज सेड टू बी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सबसे पहला है फंडामेंटल फिजिकल quantities. Friends, what do you mean by fundamental physical quantity? So we can say that the physical quantities which are included in SI unit system. SI unit system के अंदर 7 physical quantities को include किया गया है. First, length, distance means distance, mass, time, thermodynamic temperature, bulk of you can say that bulk of matter, luminous intensity. This kind of different physical quantities are included in SI system. So these quantities are said to be fundamental physical quantities. So we can say that the physical quantities, we can say that the physical quantities which are included in SI unit system is called as fundamental physical quantities. Is called as fundamental physical quantities. And mind well, the units of fundamental physical quantities are said to be fundamental units. The units of fundamental physical quantity or units of fundamental quantities are said to be fundamental units. Like you very well know that mass, distance or length, time, temperature, etc. are said to be fundamental physical quantities. Among these all fundamental physical quantities, what are their respective units are there? Mass have SI unit of kg, distance have SI unit of meter, time has SI unit of second, temperature has SI unit of Kelvin. So fundamentally you can say that these units are said to be fundamental units.
these quantities are said to be fundamental quantities and these units are said to be fundamental units. Now friend, we can say that ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज नाम दिया गया है, बट उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बाकी बचती है लाइक स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, these all physical quantities are said to be derived quantities. These all physical quantities are said to be derived quantities. See, try to understand over here what is derived quantities mean by. जैसे आप सबको पता है कि हमको पता है कि स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो हम सबको पता है कि स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Ultimately you all very well know that distance is belong to fundamental quantity, time is also belongs to fundamental quantity, so we can say that speed is such a physical quantity which can be explained with help of fundamental quantities, so speed is said to be derived quantity. Again I would like to repeat, the physical quantities which can be explained with help of fundamental quantities are said to be derived quantities. और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास बहुत सारी है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, मोमेंटम. आप चाहे पूरा पेज भर के लिख सकते हैं. कहने का मतलब इतना ही है कि these all are said to be derived quantities. The physical quantities which can be obtained with help of fundamental physical quantities are said to be derived quantities. फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से समझो, derived quantities के जो units होते हैं they are said to be derived units. The units of derived quantities are said to be derived units. एक्चुअली साइंटिस्टों ने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फिर भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद भी यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बाकी बचती थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी को ना ही फंडामेंटल में इंक्लूड किया जा सकता था, ना ही उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज में इंक्लूड किया जा सकता था, और साइंटिस्टों ने ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री. देखो, जैसे हमको पता है कि न्यूज़पेपर नॉर्मली सुबह में न्यूज़पेपर ऑलवेज रात को प्रिंट होता है और सुबह में हमारे हाथ में आता है. लेकिन कंसीडर करो कि अगर कोई नेशन के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा फिनोमिनन हुआ है कि जो फिनोमिनन की वजह से पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट होने वाली है, तो ऐसे केस में न्यूज़पेपर्स 2 या 3 पेज के एक एक्स्ट्रा पेज दोपहर को या शाम को भी प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री पेपर. Similarly over here we are discussing about supplementary quantities. Supplementary quantities 3 है. They are known as plane angle, solid angle and natural radioactivity. फ्रेंड्स, प्लेन एंगल क्या है? तो प्लेन एंगल यहां पर समझने के लिए ट्राई करो. हमने जो अभी तक एंगल मेजर किया है लोअर स्टैंडर्ड में,
वही एंगल यहाँ पर मेजर करना है। कंसीडर करो कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है और ये पॉइंट से मैं दो रेस को जनरेट करता हूं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में ये जो दो रेस है वो रेस के बीच का जो एंगल है ये एंगल प्लेनर एंगल होगा, 2 डायमेंशनल एंगल होगा। और अगर ये 2 डायमेंशनल एंगल है तो दिस 2 डायमेंशनल एंगल इज कंसीडर्ड एज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बाद यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लेन एंगल को मेजर करने का यूनिट है रेडियन। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको एंगल को रेडियन में मेजर करना है या कन्वर्ट करना है, जैसे हमको पता है कि अगर हमारे पास एंगल डिग्री में है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो माइंड वेल उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मैं डिग्री में दिए हुए एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेरी बात समझो, अगर मुझे 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इट विल बिकम 90 2 जा 180, तो 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियन। सिमिलरली 270 डिग्री जैसे दिया है तो 270 डिग्री को कोई भी एंगल को डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 93 जा 92 जा, इट विल बिकम 3 पाई बाय 2 रेडियन। इट विल बिकम 3 पाई बाय 2 रेडियन। इन शॉर्ट, अगर हमको प्लेन एंगल मेजर करना है तो हम उसको डिग्री में मेजर करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो डायरेक्टली रेडियन में भी उसको मेजर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मुझे यहां पर डिस्कशन करना है सॉलिड एंगल। फ्रेंड्स, सॉलिड एंगल की जरूरत 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ेगी। हम सॉलिड एंगल को वहां पर 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हमको यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए कि भाई सॉलिड एंगल क्या है, तो कंसीडर करो कि सॉलिड एंगल को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करता हूं। कंसीडर करो कि ये एक स्फेरिकल शेल है, और अगर ये एक स्फेरिकल शेल है और शेल के ऊपर अगर मैं यहां पर कोई छोटा सा एक सर्कुलर शेप का छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं, तो सरफेस के ऊपर अगर मैं छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं तो सेंटर के साथ ये छोटे से पार्ट ने एक कोन प्रिपेयर किया होगा, और ये कोन से एसोसिएटेड जो 3 डायमेंशनल एंगल हमको मेजर करना है दैट इज सेड टू बी सॉलिड एंगल। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। आप अगर बर्थडे पार्टी में जाते हो तो बर्थडे पार्टी में हम कोनिकल शेप की टोपी पहनते हैं, तो वो जो कोनिकल शेप की टोपी होती है उसके कोन का डायामीटर बड़ा होता है। सेम वे, अगर आप कहीं पर गए हो और गार्डन में मूंगफली परचेज करते हो तो मूंगफली वाला भैया हमको जो कोन देता है वो कोन का डायामीटर बहुत छोटा होता है। इन शॉर्ट, एज फार एज सॉलिड एंगल इज कंसर्न, इसका सॉलिड एंगल ज्यादा है और इसका सॉलिड एंगल कम है। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो ऐसा यूनिट है उसका नाम है स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का सिंबल है ऐसा। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो देखो ध्यान से समझो। एक्चुअली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्लूड किया गया है, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स में सबसे हल्का है हाइड्रोजन। मतलब उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। हीलियम के बाद आता है लिथियम। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 3 या 3 से ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि इस तरीके से जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, और अलग अलग एलिमेंट्स में जैसे जैसे उसका पीरियोडिक, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा,
न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस भी हैवी होता जाएगा। तो अल्टीमेटली जब न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो जाता है, 82 नंबर लेड है, 82 नंबर, अगर कोई न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 82 है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास 82 प्रोटॉन्स है और 82 से ज्यादा न्यूट्रॉन्स है। अगर इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस जैसे बहुत ही टाइनी रीजन के अंदर अगर है तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस इतना हैवी हो चुका है कि वो स्टेबल नहीं रह सकता। ऐसे हैवी न्यूक्लियस अपने अंदर से थोड़ा सा मास रिमूव करके ऑलवेज स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ट्राई करते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑब्वियस है कि उनको अपना मास रिड्यूस करना पड़े। मास रिड्यूस करना है तो कोई ना कोई पार्टिकल को अपने अंदर से एमिट कर देना पड़ेगा, और पार्टिकल को एमिट करने के चक्कर में वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन जैसा एमिशन करते रहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज सेड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिनन का स्टडी करने के लिए अलग अलग यूनिट सिलेक्ट किए गए हैं, और मोस्टली सारे के सारे यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे बैक्वेरल जिसका सिंबल है BQ। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के 3 यूनिट्स एक्सेप्ट किए गए, जिसमें से एक है बैक्वेरल BQ, दूसरा है क्यूरी CI और तीसरा है रॉन्टजन RM। तो फ्रेंड्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का स्टडी करने के लिए 3 अलग अलग यूनिट्स का सिलेक्शन किया गया है। एक है बैक्वेरल, दूसरा है क्यूरी और तीसरा है रॉन्टजन। So here we had discussed about the different types of physical quantities: fundamental physical quantity, derived physical quantity and supplementary quantities. Now we want to discuss how the physical quantities can be measured, and if you want to measure physical quantities, then how it can be possible, it will be discussed in next video. Thank you very much.